सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट कर देते हैं और इसको इसी वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे हम। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, व्हाट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव टू स्टडी इट इन डिटेल मैनर एंड वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। ठीक है। द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इज ए बायोमोलिकुलर एसोसिएशन वेयर द एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन विद ईच अदर स्पेसिफिकली। एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन विद ईच अदर स्पेसिफिकली। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दो तरीके से होती है, कन्वेंशनल टेक्निक, न्यूअर टेक्निक। कन्वेंशनल टेक्निक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। न्यूअर टेक्निक्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंट एसे एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड फ्लोरेसेंट एसे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे, immunohistochemistry rapid test. Precipitation reaction definition: when a soluble antigen reacts with its antibody in the presence of optimal temperature, pH and electrolytes, it leads to formation of antigen antibody complex in the form of insoluble precipitation band, insoluble floccules. ठीक है। when a soluble antigen react with its antibody, when a soluble antigen react with its antibody in presence of optimal temperature, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, पीएच पे, इलेक्ट्रोलाइट्स, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो किसकी फॉर्म में होगा? इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बैंड एंड इंसॉल्युबल फ्लोक्यूल्स। ठीक है। एग्जांपल स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट फॉर सिफिलिस, यूज्ड फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस एसटीआई caused by Treponema pallidum. Drop of antigen plus drop of patient serum antibody on slide. Patient formed as floccules if positive. Alex gel precipitation test for diphtheria toxin caused by Corynebacterium diphtheria. C. diphtheria strain isolated district on medium containing a filter paper soaked with diphtheria antitoxin. Strain produce toxin if toxinic. Diffuse in the agar and meat with the antitoxin. Produce arrow shaped precipitation band. ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? एग्लूटिनेशन रिएक्शन व्हेन insoluble antigen is mixed with its antibody in presence of optimal temperature, pH, the particle clumped or agglutinate. क्या होता है? पार्टिकल क्लम्प्ड हो जाते हैं, एग्लूटिनेट हो जाते हैं। ठीक है। जब insoluble antigen is mixed with its antibody in presence of optimum temperature, pH and electrolytes, the particle are clumped or agglutinated. एग्लूटिनेशन रिएक्शन अपनी तीन तरीके से होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव और रिवर्स। डायरेक्ट के अंदर स्लाइड एग्लूटिनेशन, ट्यूब एग्लूटिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन। इनडायरेक्ट और पैसिव के अंदर इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन, रिवर्स पैसिव। Slide agglutination used for blood grouping, cross matching, confirm the identification, serotyping of bacterial colonies grow in culture. ठीक है। Procedure: bacterial colonies is mixed with a drop of saline on slide to form uniform, smooth, milky white suspension. Drop of the antiserum containing antibody is added. Slide is shaken thoroughly for few seconds. If positive, clumping visible. If negative, milky white suspension remain unchanged. Tube agglutination, it is quantitative test done for estimating antibody in serum. A quantitative test done for estimating antibody in serum. Procedure: fixed volume of particular antigen suspension added with equal volume of serial dilution of serum sample containing antibody in test tube. ठीक है। fixed volume of particular antigen suspension added with the equal volume of serial dilution of serum sample containing antibody in test tube. If positive, clumping at the bottom of tube. If negative, no clumping at the bottom of tube. Example: typhoid fever, Vidal test. Acute brucellosis, standard agglutination test. Typhus fever, Weil-Felix reaction. ठीक है। Latest agglutination test for antibody detection: carrier molecule, polystyrene latex particles. Drop of patient serum containing antibody plus drop of latex solution coated with antigen. Black color card is rotated for uniform mixing. If positive, formation of visible clumps. Examination: anti-streptolysin or antibody. Reverse passive agglutination test for antigen detection. In this, antibody is coated on a carrier molecule which defect antigen in patient serum. Reverse passive hemagglutination HA, RPHA, carrier molecule RBC. Example: hepatitis B, HBs antigen. LAT for antigen detection. Example: CRP, C-reactive protein, rheumatoid arthritis factor. Capsular antigen detection for pneumococcus, meningococcus in CSF.
कोएगुलेशन टेस्ट, कैरियर मॉलिक्यूल, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, प्रोटीन। अपने नेक्स्ट टॉपिक इज एलाइसा, जो कि हम पढ़ते हैं अपना एलाइसा। एलाइसा क्या है? एलाइसा इज इम्यूनो एसे दैट डिटेक्ट आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी इन स्पेसिमेन। ये डिटेक्ट करता है आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी बाय यूजिंग एंजाइम सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम फॉर डिटेक्शन, बाय यूजिंग एंजाइम substrate क्रोमोजन सिस्टम फॉर डिटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एलाइसा, क्या प्रिंसिपल रहता है इसका? इम्यूनोसॉर्बेंट स्पेसिफिकली एड्सॉर्ब द एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सीरम। स्पेसिफिकली एड्सॉर्ब करता है अपना इम्यूनोसॉर्बेंट को, ठीक है। अब आते हैं एंजाइम यूज्ड टू लेबल वन और मोर कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोएसे। यूज्ड टू लेबल वन और मोर कंपोनेंट इम्यूनोएसे, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी। substrate chromogen system added at the final step of ELISA. Enzyme antigen antibody complex plus substrate activate the chromogen color change detected by spectrophotometry. ELISA reader. Types of ELISA. ELISA आपके 5 टाइप के होते हैं: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच, IgM एंटीबॉडी, कैप्चर, MAC, कॉम्पिटिटिव। आओ अपना, ठीक है। अब डायरेक्ट ELISA पढ़ लेते हैं हम। यूज्ड फॉर डायरेक्ट ELISA जो होता है ना, डायरेक्ट ELISA यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन टेस्ट सीरम। एंटीजन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है टेस्ट सीरम में। हेयर प्राइमरी एंटीबॉडी टारगेटेड अगेंस्ट सीरम एंटीजन इज लेबल्ड विद एंजाइम प्रोसीजर। वेल ऑफ माइक्रो टाइटर प्लेट प्लस एंटीजन टेस्ट सीरम। एंटीजन बिकम अटैच्ड टू सॉलिड फेज बाय पैसिव एड्सॉर्प्शन। आफ्टर वॉशिंग एंजाइम लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी एडिड। सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडिड, कलर इज मेजर्ड। इनडायरेक्ट ELISA यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन टेस्ट सीरम। हेयर सेकेंडरी एंटीबॉडीज लेबल, ये एंटीबॉडी का डिटेक्शन करता है और ये एंटीजन का डिटेक्शन करता है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट अपना एंटीजन का डिटेक्शन करता है और ये अपना एंटीबॉडी का डिटेक्शन करता है। यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन टेस्ट सीरम। हेयर सेकेंडरी एंटीबॉडीज लेबल्ड विद एंजाइम प्रोसीजर। वेल्स ऑफ मैक्रोटिटर प्लेट्स प्री कोटेड विद एंटीजन। प्राइमरी एंटीबॉडीज एडिड टू वेल्स, ठीक है। After washing, enzyme labeled secondary antibody anti-human antigen coated. Anti-human IgG added. Substrate chromosome system is added. Color is developed. Sandwich ELISA used for detection of antigen in test serum. Here antigen gets sandwiched between capture antibody and detector antibody. Capture antibody और detector antibody के बीच में सैंडविच बन जाती है इसकी। किसकी? एंटीजन की बेचारे की। प्रोसीजर क्या रहेगा इसका? माइक्रोटाइटर वेल इज प्री कोटेड विद कैप्चर्ड एंटीबॉडी मोलकुलर एंटीबॉडी टारगेटेड अगेंस्ट टेस्ट एंटीजन। एंटीजन टेस्ट सीरम, एंटीजन या टेस्ट सीरम इज एडेड टू वेल्स। एंटीजन गेट्स अटैच्ड टू कैप्चर एंटीबॉडी कोटेड ऑन द वेल। आफ्टर वॉशिंग एंजाइम लेबल्ड प्राइमरी डिटेक्टर एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन इज एडेड। सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम इज एडेड, कलर इज डेवलप्ड। एप्लीकेशन ऑफ ELISA for antigen detection: HBsAg of hepatitis B, NS1Ag of dengue. ELISA for antibody detection: antibody against hepatitis B, C virus, HIV, EBV, dengue, ठीक है। That's it for immunology। और इसको यहीं पे खत्म करते हैं चैप्टर को और इम्यूनोलॉजी को भी और माइक्रोबायोलॉजी की सारी PDFs वगैरह। अभी हम PYQs प्लस अपना आगे से एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे बिल्कुल। That's it for माइक्रोबायोलॉजी। हम पैथोलॉजी पे आते हैं, पैथोलॉजी की सिस्टमिक पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।